اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں مصروف ہوں گے اور پڑھائی بھی بہت اچھے سے کر رہے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاس ہشتم کے بچے 8 کلاس کا اردو کا ہم سبق نمبر 8 کر رہے ہیں، جو کہ پیج نمبر 48 پہ ہے۔ سبق کا عنوان ہے مناظر پاکستان۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس لیکچر میں ہم لوگ سب سے پہلے اس سبق کے الفاظ معنی، اس کی پڑھائی اور تشریح کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس جڑے رہیے گا میرے ساتھ۔ پیج نمبر 46 کھولیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ اس سبق کے الفاظ معنی کریں گے۔ ہر سبق کے شروع میں بتاتی ہوں پہلے لیکچر میں کہ سب سے پہلے الفاظ معنی کرنا اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ کسی بھی سبق نظم کا مفہوم معنی، اس کا خلاصہ یا اس کا مقصد تشریح سمجھنے کے لیے آپ کو مشکل الفاظ کے معنی کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ مشکل الفاظ کے معنی ضرور لکھیں۔ سب سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو بتاتی چلوں، یہ کچھ الفاظ انہوں نے دیے ہیں جو درست تلفظ کے ساتھ آپ نے ادا کرنے ہیں۔ ان کے معنی بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ سبق کے اندر آ جائیں گے۔ آپ چاہتے ہیں تو میں بتا بھی دیتی ہوں، لکھنا چاہتے ہیں اوپر لکھ لیں۔ ذرا پڑھیے گا میرے ساتھ۔ سہولت، آسانی، حکومت، اقتدار، قدرتی، فطری، حیات، زندگی، مجسمہ، مورت، چشمہ عینک کو بھی ہم لوگ کہتے ہیں، بنجر، ناقابل کاشت۔ اب الفاظ معنی کی طرف آپ آ جائیں ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ سب سے پہلے ہمارے پاس پیج نمبر 46 ہم صفحہ نمبر کے حساب سے، کیونکہ اکثر آپ نے الفاظ معنی دیکھا ہوگا کہ وہ ادھر ادھر لکھے ہوتے ہیں تو بچوں کو ڈھونڈنے میں پھر وہ دقت ہوتی ہے، ٹائم ہوتا ہے، تو میں پیج کے حساب سے لکھوں گی، پیراگراف کے حساب سے آپ دیکھیے گا۔ سب سے پہلے پیج نمبر 46 میں آ جائیں۔ بے پناہ، بہت زیادہ، اس کے بعد ہے حسن و جمال، خوبصورتی، اعزازات، تحفے، چپا چپا، کونا کونا، بالخصوص، خاص طور پر، رخ، طرف، سالہ سال، کئی سالوں سے، مقبول، مشہور، نجی، ذاتی، مشغول، مصروف، فروغ، پھیلنا، بلا شبہ، جس میں کوئی شک نہ ہو، جس میں کوئی شک نہ ہو، دلکش، دل کو چھو لینا، بے نظیر، بے مثال، نیشنل، قومی، محیط، پھیلا ہوا،
ڈیئر اسٹوڈینٹس اب پیج نمبر 47 کی طرف آ جائیں آپ. پیج نمبر 47. نایاب، ناپید، موافق، یکساں، بقا، باقی، کھاڑی، نمکین اور دلدل، مسکن، ٹھکانہ یا گھر، یک وقت، ایک وقت میں، سبب، وجہ، اچھوتے، انوکھے، تراشی، کاٹی گئی. کاٹ کر شکل دینا، تراشنا ہوتا ہے. سحر، جادو، سحر، جادو، جکڑ لیا، جکڑ لینا، قابو کر لینا. شاہراہ، سڑک، مجسمہ، مورت، مترنم، سر بھری آواز، محظوظ، محظوظ ہونا، لطف اندوز ہونا. منجمد، جمی ہوئی، سوا، علاوہ. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس پیج نمبر آپ آ جائیں 48. پیج نمبر 48. شفاف، صاف، منفرد، الگ، خیرہ کن، حیرت میں ڈالنے والا، حیرت میں ڈالنے والا، حیرہ کن، خیرہ کن. سیاحتی مقام، سیر کی جگہ، مسافت، سفر، صحرائی، ریتلا، دیدنی، دیکھنے کے قابل،
जानिब तरफ संगम मलाप मसूर कुन जादू कर देने वाला। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने सबक मनाज़िर पाकिस्तान की अल्फाज़ किए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी रीडिंग की तरफ आते हैं, पढ़ाई और इसकी तशरीह की तरफ। मेरे साथ जुड़े रहिएगा और गौर से सुनिएगा। यूँ तो पूरे पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेपनाह हुस्न जमाल और एज़ाज़ात से नवाजा और बिलाशुबा इसका चप्पा चप्पा इस काबिल है कि इसकी सियाहत की जाए, यानी सैर की जाए। लेकिन मौसम गर्मा में लोगों की बड़ी तादाद बिलखसूस वतन अजीज़ के शुमाली इलाका जात की तरफ रुख करते हैं, जहाँ मई से सितंबर तक का मौसम सियाहती सरगर्मियों के लिए मौजूद तरीन समझा जाता है। इन इलाकों में मरी, गलियात, हंजा, कलाम, सवात, मालम जब्बा वगैरह तो साल साल से पाकिस्तान के मकबूल और पसंदीदा सियाहती मकामात में शामिल हैं। मगर अब हुकूमत और निजी शुबा मिलकर इन रवायती सियाहती मकामात के अलावा कुछ दीगर गैर मारूफ मकामात पर भी सड़कें, होटल्स और सियाहों की सहूलत और दिलचस्पी के लिए दीगर तामीरात और इक़दामात से तेज़ी से मशगूल हैं, ताकि मुल्क में सियाहत को फ़रोग़ मिले और दुनिया को पता चले कि हमारा प्यारा पाकिस्तान बिलाशुबा ज़मीन पर जन्नत से कम नहीं। तो आइए पाकिस्तान के चंद ऐसे दिलकश और तरक्की पजीर मगर कदरे गैर मकबूल सियाहती मकामात की सैर करते हैं। इनमें से दो बेनज़ीर मकामात हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले जो पाकिस्तान के इलाके हैं जो जहाँ मई से सितंबर तक का बहुत रश होता है, जिसमें आप कह लें मरी, कलियात, हंजा, कलाम, गिलगित, सवात, इस तरफ मालम जब्बा, इसमें हर साल पाकिस्तान के अलावा गैर मुल्की सियाहत भी ख़ास तौर पर जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान ने यूँ किया है कि कुछ गैर मशहूर सियाहती मकामात की तरफ तरक्की कर रहे हैं। वहाँ होटल्स और सियाहों के लिए बहुत सारी सहूलियात के लिए तामीरात की जा रही हैं, इक़दामात किए जा रहे हैं। तो उनका हम इस सबक में पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें से दो तो हैं। अब उन जो सियाहती मकामात हैं उनमें दो काफ़ी मशहूर और बेनज़ीर, मशहूर तो नहीं, बेनज़ीर कहना चाहिए, जिनकी कोई मिसाल नहीं, वो हैं। पहला है हंगोल नेशनल पार्क। बलूचिस्तान में हंगोल नेशनल पार्क एक सरसब्ज़ वादी है जो मौसम गर्मा में सियाहों का एक बड़ा मरकज़ बन सकता है। मतलब अभी है नहीं, जो बन सकता है। हंगोल क्या है, एक बहुत जो मौसम गर्मा में सियाहों का एक अहम सियाहती मरकज़ बन सकता है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सबसे हैरानकुन बात ये स्टूडेंट, जिसका रकबा देखिएगा कि रकबा कितना है, जो तकरीबन 6,19,000 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। 6,19,000 रकबा। ये कराची से 109 किलोमीटर के फासले पर बलूचिस्तान के 3 अजला गवादर, लसबेला और अवरान पर मुहित है। वसी रकबे पर फैले इस इलाके को 1988 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। 1988 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। कहाँ वाक़या है? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान के 3 सूबों के अंदर है और ये तकरीबन कराची से है 109 किलोमीटर के फासले पर। तो डियर स्टूडेंट, अगले पेज पे आ जाए। 47 नेशनल पार्क एक ऐसा महफूज इलाका होता है जो जंगली हयात, माहौलियात और इकोसिस्टम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी तौर पर तमीर किया जाता है, और जिसका मकसद नेशनल पार्क यानी जो कि हुकूमत के अंडर होता है, जिसका मकसद किसी मखसूस इलाके में नायाब होते हुए पौधे और जानवरों को ऐसा मुवाफ़िक माहौल फराहम करना होता है जो उनकी बका के लिए ज़रूरी हो। इस पार्क का नाम इसके जनूबी हिस्से में रहने वाले दरियाए हंगोल के नाम पर रखा गया, जो बहरे अरब के साहिल के साथ बहता है और आबी परिंदों और समुद्री हयात की बड़ी तादाद को एक महफूज पनाहगाह फराहम करता है। दरियाए हंगोल के साथ वसी खाड़ी, दरियाए हंगोल मतलब उसके अंदर नहीं, नेशनल पार्क के अंदर नहीं, दरियाए हंगोल के साथ उन्होंने बोला है एक वसी खाड़ी होता है, यानी नमकीन पानी वाला दलदली इलाका। दलदल होता है जिसके अंदर आप धंस जाते हैं, वो ज़मीन नरम होती है बहुत। ये दरिया आगे जाकर समंदर में गिरने से पहले मदोजज़र वाला एक तहाना बनाता है, जो दीगर इलाकों से हिजरत करके आने वाले हज़ारों परिंदों और दलदली मगरमच्छों का मस्कन है, यानी उनका ठिकाना है। हंगोल नेशनल पार्क जाने वालों को एक ही मकाम पर कई तरह के मकामात के नज़ारे का अनोखा तजर्बा हासिल होता है। यानी जो मुख्तलिफ आप मकामात पर मुख्तलिफ चीज़ों के नज़ारे करने अलग अलग जाते हैं, तो नेशनल पार्क हंगोल जो है उसमें एक ही जगह पर आपको मुख्तलिफ मकामात के नज़ारे एक ही जगह पर मिलेंगे।
यहाँ बेक वक्त सहराई और मैदानी इलाके भी हैं। अब सुनिएगा क्या क्या, बेक वक्त सहरा और मैदानी इलाके, घने जंगलात भी हैं, बंजर पहाड़ी सिलसिला भी है। सैकड़ों सालों की तकाई अमल और समुद्री हवाओं के कुदरती कटाव के सबब खत्ते की चट्टानें अछूते अंदाज में यानी बहुत अनोखे अंदाज में तराशी गई हैं, जो जहाँ के आने वाले सयाहों को अपनी शहर में जकड़ लेती हैं। हंगोल नेशनल पार्क में मुल्क भर से सयाहों की आमद का बाकायदा आगाज़ 2004 में मकरान कोस्टल हाईवे की तकमील के बाद हुआ, जो इस खित्ते को कराची और मुल्क के दीगर इलाकों से मिलाने वाली अहम शाहराह है। यानी 2004 में जो मकरान कोस्टल हाईवे बनाई गई है, जो कराची और मुल्क के दूसरे इलाकों से इसने मिलाया है, ये अहम शाहराह है। कसीर तादाद में मौजूद जंगली और समंदरी हयात, अनोखी चट्टानें, उम्मीद की शहजादी नामी एक अछूती चट्टान, सफनेक्स ऑफ बलोचिस्तान जिसे मकामी अफराद अबूलौल का मुजस्मा भी कहते हैं, मियानी होर के इलाके में वाक़या मटी फशां, हंगलाज मंदर और मकरान के बेकरां साहिल इस खित्ते के वो ख़ास मकामात हैं कि जिन्हें अगर आपने नहीं देखा तो समझ लें कि आपने कुछ नहीं देखा। यानी आपको एक जगह पे बहुत सारी चीज़ें हंगोल पार्क में नज़र आएंगी। जो मुख्तलिफ़ जगहों पर आप सैर करते हैं मुख्तलिफ़ मकामात को देखने के लिए, वो हंगोल पार्क आप देखें 6,19,000 एकड़ रकबे पर फैला हुआ, इतना वसी रकबे पर फैला हुआ ये नेशनल पार्क है। आगे दूसरा आ गया गुमराट वैली सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले देर में वाक़या गुमराट वैली जो है में भी बहुत तेज़ी से दुनिया भर के सियाहतों का खसूसी मरकज़ बनती जा रही है। बादलों से घिरे बर्फ़ पोश पहाड़ों के दरमियान वाक़या इस वादी में कई सरसब्ज़ चरागाहें मौजूद हैं, जिन्हें मकामी ज़बान में बांडे कहते हैं। वादी में जहाँ से भी गुजरे पत्थरों से टकराता दरियाए पचगोड़ा का यहाँ वादी में जहाँ 2 दफ़ा लिखा गया, 1 दफ़ा आप क्रॉस कर दें, मुतरन्नम आवाज़ से महसूस करते हैं। वादी में मौजूद देवदार के जंगलात से उठने वाली खुशबू तो शायद आप उम्र भर ना भुला पाएँ। यहाँ मौजूद बुलंदो बाला पहाड़, बहते पानी का शोर सयाहों को अपने शहर में जकड़ लेता है। यानी गुमराट वैली खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरत बर्फ़ से ढकी हुई वादी, जो बहुत उसमें कई सरसब्ज़ चरागाहें हैं, वो भी सयाहों की मरकज़, जो सयाहों की दिलचस्पी का मरकज़ और उनकी नज़र शहर में खो लेने वाली है। मतलब उसमें आप जाएँ तो उसके जादू में खो जाएंगे, यानी उसकी खूबसूरती में। यूँ ही आप वादी गुमराट में दाखिल होंगे, एक जानब पहाड़ों के दामन में आपको दरियाए पंजगोड़ा की शाख दरियाए गुमराट बहती दिखाई देगी, दूसरी जानब छोटे छोटे गाँव और कुदरती नज़ारों से माला माल मुख्तलिफ मकामात मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, रुकिए और ज़रा मुझे कुछ चंद सवालात बताइएगा आप कि नेशनल पार्क से क्या मुराद है। हाँ जी, गुड स्टूडेंट्स, नेशनल पार्क से क्या मुराद है? ऐसा महफूज इलाका जो जंगली हयात, माहौलियात और इकोसिस्टम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी तौर पर तमीर किया जाता है, जिनका मकसद इन नायाब और ख़त्म होने वाले जानवरों और परिंदों और पौधों के लिए मुवाफ़िक़ माहौल करना होता है। और उसके बाद देखिए गुमराट वैली कहाँ वाक़या है? खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला देर में वाक़या है। उससे पहले पेज नंबर 46 पे है पाकिस्तान के चंद नुमायाँ सियाहती मकामात जहाँ लोग अक्सर जाते हैं। मरी, गलियात, कलाम, सवात, मालम जब्बा, ये है सियाती मकार। पाकिस्तान के चंद गैर मकबूल सियाती मकामात, ये जो हमने अभी पढ़ा, हंगोल नेशनल पार्क, अब गुमराट वैली, उसके बाद आप देखें आगे भी आ जाएगा वादिया नीलथर, तो ये इतने मशहूर नहीं है। आगे देखें, इसके बाद है यूँ तो पाकिस्तान भर में ट्राउट के शिकार पर पाबंदी है, लेकिन यहाँ इन मछलियों की फार्मिंग होती है, चुनाचे यहाँ आप तालाब और दरिया में किसी भी जगह ट्राउट मछली की जो है खा सकते हैं। वादी गुमराट का सबसे पहला मकाम औशी डब है। ये ऐसा मैदान है जो कभी भी फूलों से भरा हुआ होता है, लेकिन अब यहाँ आलू काश्त होता है। औशी डब से ज़रा आगे गुमराट आबशार है। आबशार तक पहुँचने के लिए जीप से उतरकर 20 मिनट तक पैदल चलना पड़ता है। बुलंद पहाड़ से गिरने वाली ये आबशार मौसम सरमा में चंद दिन मुंजमद यानी जम जाती है, बर्फ़ हो जाती है कि सवा बाकी सारा साल बहती रहती है। मौसम गर्मा में भी इसका पानी इतना ठंडा होता है कि आप इसमें नहाने का सोच भी नहीं सकते। पेज नंबर 48 पे आ जाएं। यहाँ से कुछ आगे एक प्याला नुमा मैदान है जिसे बोरडब कहा जाता है। यहाँ भी काश्तकारी होती है और आलू, मटर, शलजम और गोभी और सलाद वगैरह उगाए जाते हैं। बोरडब से तकरीबन आधे घंटे के सफ़र के बाद काला चश्मा का मकाम आता है, जिसका पानी अगरचे इंतहाई शफाफ है, मगर मकामी अफराद उससे काला चश्मा कहते हैं क्योंकि यहाँ से निकलने वाले पानी पर काई जमा हो जाती है। चश्मे का पानी इतना ठंडा होता है कि आप उसमें 1 मिनट के लिए भी हाथ नहीं डाल सकते। वादी नीलथर देख लें आप, गिलगित से 2.5 घंटे के सफ़र पर।
गिलगित से 2.5 घंटे के फासले पर वाक़या वादी नीलतर अपनी रंगीन झीलों की वजह से खूबसूरत और मुनफरिद हैसियत रखती है। यहाँ दुनिया का सबसे बेहतरीन आलू भी काश्त किया जाता है। चीड़ के दरख्त से घिरी ये वादी दुनिया के हंगामों से दूर एक अलग थलग और मशहूर सियाहती मकाम है। इसकी खैरा कुन झीलों का खासा ये है कि इन्हें देखने के बाद सियाह खास देर तक खुद को निगाह उठाने और किसी और जानब देखने के काबिल ही नहीं पाते और उनका जी नहीं चाहता बस उन्हें एक हसीन रंगीन पानियों को देखते। वो उनका दिल चाहता है कि वो हसीन पानियों को देखते रहें, रंगीन पानियों को। आगे वादी नीलम 4 नंबर पे है। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के शुमाल की जानब सहला बांडी पुल के से शुरू होकर तौबट तक 240 किलोमीटर की मुसाफत पर फैली ये हसीन व जमील वादी का नाम नीलम है। ये वादी अपने नाम की तरह खूबसूरत है। वादी नीलम का शुमार आज़ाद जम्मू कश्मीर की खूबसूरत तरीन वादियों में होता है, जहाँ दरिया साफ़ और ठंडे पानी के बड़े बड़े चश्मे, नदियाँ, जंगलात और सरसब्ज पहाड़ हैं और जगह जगह बहते हैं। बुलंद पहाड़ों से गिरती आबशारें हैं कि जिनके तेज़ धार दूधिया पानी शहरा के ऊपर से बहे चले जाते हैं और पत्थरों से सर पटकते दरिया नीलम के गर्दलूद पानियों में शामिल हो जाते हैं। तो 5 नंबर पे अब बहावलपुर आ गया है हमारे पास। अब बहावलपुर पंजाब का शहर बहावलपुर तारीखी इमारत, यादगारों और बागात के ख़जाने का मालिक है। ये शहर दरिया सतलुज के बाएं जानब पेशावर कराची रेलवे लाइन के साथ साथ वाक़या है। सहराई इलाके के साथ साथ यहाँ सरसब्ज बागात भी सियाहों की नज़रों को तस्कीन पहुँचाते हैं, जबकि माजी के मोहल्लात की शैन व शौकत भी दीदनी है। अब्बासी मस्जिद, सेंट्रल लाइब्रेरी, किला दरौट, नूर महल, दरबार महल, मकबरा बीबी जोवंदी और लाल सहारा नेशनल पार्क भी यहाँ के अहम और दिलकश तारीखी मकामात में सर फहरिस्त है। काला चश्मा से आगे दरियाए पंजगौड़ा की दूसरी जानब बजारतन नामी एक छोटा सा गांव है, जहाँ एक खूबसूरत चरागाह या बांडा भी है, जो कि हसीन और मशहूर कुन खुशबू और फूलों से माला माल है। बुजारतन से आगे 3 मुख्तलिफ वादियों का संगम जो है 2 जंगा वाक़या है। यहाँ से आगे गाड़ियाँ नहीं जा सकती। इस मकान के मशरक़ की जानब बांडा, जबकि मगरब में काशकुन बांडा और शाजवर बांडा वाक़या हैं, जहाँ पैदल जाया जा सकता है। तो ठहरिए और आप मुझे बताएं कि काला चश्मा का पानी जो होता है वो कैसा होता है। काले चश्मे का पानी डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा काला चश्मा आता है, इंतहाई शफाफ पानी होता है उसका, और इतना ठंडा होता है कि 1 मिनट के लिए भी आप उसमें हाथ नहीं डाल सकते। उसके बाद आप देखें कि गुमराट वैली में मैदान को बोटअप क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्याला नुमा ये मैदान है जिसे बोटअप कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सबक की हम लोगों ने पढ़ाई की, इसकी तशरीह की। आपने देखा कि कुछ गैर मशहूर सियाहती मकामात जो हैं, गैर मकबूल सियाहती मकामात, जिनमें हंगोल नेशनल पार्क हो गया, गुमराट वैली हो गई। उसके बाद आप लोगों ने वादी नीलतर लिखी, वादी नीलम, बहावलपुर, ये सारे ऐसी हैं कि जो सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बनवाने के लिए हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है। वह सियाहों के लिए आला मकामात और सहूलियात की तामीर हो रही है, बनाई जा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपने सबक की पढ़ाई और तशरीह में दिलचस्पी ली होगी और आप नेट पे सर्च करें। अगर आपने इनमें से कुछ नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिएगा इसको। फिर कभी भी कहीं मौका मिला तो आप अपने घर वालों के साथ वहाँ की सैर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं आपको इसी सबक के अगले लेक्चर में, जिसमें हम इसके खुलासा की तरफ आते हैं। तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।